हो सकता था। ये पूरी सरकार सकते क्या चला रहे हैं। ये जो वेड ये सब चीज छोड़े रहे हैं, मतलब पूरा टोटल में मतलब गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब को काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा, जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। And here's a quick look at the top headlines at 10 o'clock this morning. The stage is set for the 2024 election as the first election of the season kicks off. Voting begins for 40 assembly seats in Mizoram. Phase 1 of voting underway in Chhattisgarh. It's BJP versus the Congress as Mahadev betting scam becomes the top focus. The Republic Media Network's 8-part investigation into the Mahadev betting scam becomes the #1 election issue. As the gold smuggling angle emerges in the Mahadev betting scam, ED sources suggest Dubai link now under investigation. Enforcement Directorate takes note of Republic Sting writes to Republic to get the Mahadev investigation sting tapes. Massive impact of Republic Mahadev investigation. ED sources tell Republic summons are likely to be issued soon. Well, Chhattisgarh and Mizoram kicked off the month-long poll battle today, while voting for 20 seats out of the 90-member Chhattisgarh Assembly are taking place in the first phase. The 40-member Mizoram Assembly is undergoing polling in a single phase. Pictures on your screen are of voters casting their ballot earlier this morning. Now, Chhattisgarh, of course, the 20 seats that we are seeing go to the polls today are in Naxal. Some of them, of course, fall in the Naxal-infested areas. Most of these are seats in the tribal belt. Some of them, I think 12 of them are reserved for the scheduled caste category. Right now, we just a short while ago saw Raman Singh, the BJP's contender for the CM's post, cast his ballot also. He was also speaking to the media thereafter, talking about how corruption remains one of the core focal issues for voters over there. Do remember that the betting scandal app has exploded right before the election, so obviously it will bring back to focus corruption. But just to give us viewers a sense of the security that has been put in place right now in at least Chhattisgarh, because this is a Naxal-infested area, and we are given to understand that several companies of CRPF forces have been deployed in the area to make sure that polling is peaceful. However, of course, there have been 2 ID explosions since yesterday. One took place earlier this morning and earlier in Sukhma, and one last night. I'm going to go across now, and we're going to play out Raman Singh's comments even as polling takes place.
सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज बहुत ही अहम चुनाव है, नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में चुनाव है, लेकिन लोग तब भी लोग आ रहे हैं। पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप वोटरों को क्या बोलेंगे जो नक्सल प्रभावी क्षेत्र में भी मतलब डट के आ रहे हैं और वोट करना चाह रहे हैं। मैं सभी मतदाता भाइयों को खासतौर से दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, नारायणपुर, बीजापुर, दूरस्थ अंचल के उमानपुर, मोहला, चौकी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में आपकी भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत हुआ है और आपके वोट से ही जो सरकार बनेगी उस सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी। और आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालिए, मतदान का अधिकार आपको है और उसका उपयोग पूरा करिए। नक्सलिज्म का खात्मा कब होगा सर? क्योंकि नक्सलिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है। हम नहीं चाहते आज 20 राज्य मतलब 20 सीट्स में मतलब चुनाव हो रहा है, उसमें कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मतलब नक्सलिज्म है, हिंसा हो रही है, तो इसका खात्मा कब होगा ये ज़रूरी है जानना। अगले 5 सालों में स्थिति में बड़ा परिवर्तन होगा। सरगुजा में स्थिति बदली है, बस्तर भी हो जाएगा। सर नक्सलिज्म के अलावा अब आप मुझसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा मामला है। महादेव में तो आपने अपनी टिप्पणी दे दी है, लेकिन कांग्रेस तो बोलती है कि ये सब एक साजिश है धूमिल करने की उनको, और चुनाव के बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा। तो अब मुझे आप बताइए कि महादेव सट्टा घोटाला, जो लेकर घोटाला जो आप बोल रहे हैं, ये कितने बड़े मुद्दे हैं जो वोटर्स हैं उनके माइंड में? भ्रष्टाचार 15,000 करोड़ का घोटाला, और अकेले महादेव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। शराब में 2,100 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़ का कोयले में घोटाला, 600 करोड़ का चावल का घोटाला, गौठान में 1,300 करोड़ का घोटाला। ये तो सभी क्षेत्रों में, और अब तो पीएससी में भी घोटाला करके पैसा कमाने की साजिश हो रही है। तो एक प्रकार से सरकार का मुहकमा सिर्फ और सिर्फ उगाही में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार में लगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे बस यही है सर, मुझे मालूम है कि सारे और भी वोटर और भी पत्रकार जो आपसे बात करना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि छत्तीसगढ़ की जनता को आज आप क्या वादा करेंगे कि आप डिलीवर कर पाएंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ को हम भी चाहते हैं कि एक विकसित राज्य बने, हम चाहते हैं कि इस राज्य से भ्रष्टाचार खत्म हो, इस राज्य से नक्सलिज्म खत्म हो। क्या वादा करना चाहेंगे आज आप कि छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य बने, यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने और नक्सलिज्म खत्म हो? एक लाइन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उसको मैं रिपीट करता हूँ। छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, हम ही इसको संवारेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। अब इसके विकास के लिए 15 साल हम लोगों ने काम किया था। आगे इसको संवारने की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की। All right, Republic TV also spoke earlier to the Chief Minister of Mizoram, Zoram Thanga, and here's what he told us. Well, I have cast my vote and I have visited half of my constituency also. Well, this time we have finished only one term. So normally at least they had the 2 terms, 10 years. But anyhow, this is not the most important. The most important is how you perform during your government. So during this, even in the COVID period, we have performed very well, and I believe that people appreciated it, and we shall be able to form the government. During the election campaign time, any party can say anything. So this time we have performed the SEDP very good, and we have given them through the bank account transfer system. There is nothing to investigate. Yeah. BJP is still your friend? BJP, our friend in the sense that in the center we are the NDA partner, but not here in the state. And here's a look at what else is making news. Now, the public meeting is being organized by the BJP in Hyderabad, where Prime Minister Modi will address the BC Atma Gaurava Sabha at the LB Stadium. The Union Home Minister Amit Shah will address election rallies in the assembly constituencies of Kuchman, Makrana and Barbatsar in Rajasthan. ED has summoned former Mumbai Mayor and Uddhav Thackeray, faction leader Kishori Petnekar on the 8th of November in connection with the COVID body bag scam.
Aam Aadmi Party MLAs have asked Chief Minister Arvind Kejriwal not to resign if he is arrested by the Enforcement Directorate and continue to run the Delhi government from jail. Punjab AAP MLA Jaswant Singh Gajjan Majra has been arrested by the Enforcement Directorate in connection with a money laundering case linked to an alleged bank fraud. The Delhi NCR region continues to battle toxic air and is enveloped under a thick layer of smog, with visibility dropping as the air quality index remains under the severe category. As the ban that was imposed on the BS3 petrol vehicles and BS4 diesel vehicles continues in Gurugram, the police have restricted the entry of trucks into Delhi. Now, what started with stink tapes of 4 key players has now exploded into a full-blown 8-part investigation that has exposed the Mahadev betting app scam. From the alleged role of the CMO to smuggling and the D-gang link, the Mahadev scam is exploding. पुलिस महकमे में कैसे बनाया, कैसे इसको पता चला कि नहीं प्रोटेक्शन चाहिए तो काम ये पुलिस को साथ रखना जरूरी है और नेता लोग को, है ना। आज भूपेश बोलता है मोदी को इतना बड़ा गेम चल रहा, बंद क्यों नहीं करवाता। मोदी भूपेश को बोलता कि तेरे साथ चल रहा है, किसको क्या बोलो, सबका हाथ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीस में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, सब दुबई से पैसा मांग रहे हैं। हाँ, मांगेंगे। क्या एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा? मुंह खोल रहे हैं। लेकिन मोड कैसे, पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI, चलो खोल दी ना, पड़ी मार दो, इसको इतना देता था, उसको इतना देता था, ऐसी होगा, कहीं जुगाड़ होगा। लेकिन अब तो लेकिन सुनिए, ये दोनों अब चले गए अंदर, लेकिन अभी भी चुनाव आ रहा है, डिमांड बढ़ी रही है, सब छूट जाएगा। जुआ एक तो लगता है इसमें, ये जो छुटपुरिया पकड़ाए थे उसको 24 घंटे छूट जाते हैं। वही लैपटॉप मोबाइल जब्ती होती वही नहीं मिलता है, कैश जब्ती हो किसी पास 2 लाख, किसी पास 5 लाख, 24 घंटे जुआ एक है बस। और ये लोग के पास ज़्यादा पकड़ा है, बहुत कैश पकड़ा है, और ट्रांजेक्शन दिखा दी ना पूरा मोबाइल में। किनके पास बहुत पकड़ा है? चंद्रभूषण और मोबाइल में दिखा दिया। मोबाइल सबसे बड़ा बीमारी तो मोबाइल है। विशेष पार्षद प्रियंका साहू, इतना मोटा तो चैन उसके गले में, जितना वो मोटा था मेरी मिसेज पायल पहनती है, 4 उंगली में अंगूठी, ब्रेसलेट, ये सारा भोला बता दिया, सौरभ को सबके चाचा यही है। सबका हाथ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीस में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। सर, आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो CM साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स पे करनी पड़ी हो, बहुत सारे चुनाव थे। देखिए अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा, प्राइवेट जेट से आएगा, या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते? हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए अभी नहीं, पहले किए हैं। 2022 में किया था। 2022 में उन्होंने किया था, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है, प्राइवेट के थ्रू हुआ है। वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया, तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए, अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस।
तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूँ मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। पैसे के लिए और काहे के लिए? इतना बड़ा भाई, छत्तीसगढ़ छोटा सा स्टेट, वहां तो कुछ अमाउंट भी देगा तो बहुत बड़ा होता है, और मैंने ऐसा छोटा मोटा अमाउंट तो दिया नहीं है। जाने का क्या अमाउंट कितना दिया है? 450 से 500 रुपए तक का दिया हुआ है उधर अमाउंट। मैं गया 2 बार। हाँ 2 बार दुबई। पहली बार तो 2021 में गए। हाँ 2021 में। दूसरी बार अभी इसी साल में गया। आज 3 साल में अभी तक कम से कम 60 से 70 हजार करोड़ का व्यापार हो चुका है दुबई में। इसकी बहुत सारी मतलब बिजनेस इसका बहुत सारा है दुबई में। इसका सबसे मेन काम है दुबई में गोल्ड का काम है, हवाला का काम है, और जो गोल्ड जो तस्करी होती है दुबई से कलकत्ता के रास्ते जो आती है उसका इसका बहुत बड़ा काम है इसका वहाँ पे। इसका अफ्रीका से अच्छा कनेक्शन है गोल्ड का, लेकिन अफ्रीका से इसका बहुत तगड़ा कनेक्शन है। अच्छा। हाँ, अफ्रीका की कोई गवर्नमेंट से इसका बहुत अच्छा लिंकअप है इसका। It's undoubtedly a big scam with deep political links. ED has taken note and sought sting tapes, and political ramifications of this sting are far and wide. It is the biggest talking point of this election season. Mahadev betting scam is the biggest political story that others in media have been forced to follow. You're watching Republic TV, and on the other side, the Enforcement Directorate takes note of the Republic sting, writes to Republic to get the Mahadev investigation sting tapes. And massive impact of Republic Mahadev investigation. ED sources tell us that summons are likely to be issued soon.
प्राइवेट जेट से आएगा, प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए, कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं, सरकार चला रहे हैं। ये जो रेड ये सभी चीज छोड़े रहे हैं, वो पूरा टोटल में मुझे गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा, जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जोरदार धमाका व गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो और अचानक जोरदार अलर्ट जारी। Welcome back. Now, air quality across Delhi continues to remain in the severe category. The Delhi government has announced the return of the odd-even system after a gap of 4 years starting November 13 till the 20th. It is that time of the year when we don't know whether to celebrate and feel happy because the festivities are around, or to dread the season because it's again the Delhi AQI situation which is hovering over our heads as the Delhi air again goes into the severe AQI situation with so many implementations and bans by the government being implemented now, which people are saying is little late, as this happens every year when we get into the severe air pollution situation where you can see that we have this toxic haze over almost everything, and we also have these young people here with us who should be in the prime of their health, but they're already saying that they are suffering, their health is suffering because of this very bad severe AQI situation that Delhi is facing again for the 8th year in a row. So this is where the Delhi air pollution has reached, and this is what the situation of the AQI is. With cameraman Manish Karakoti, I am Nikita Sahai for Republic TV. And here's a quick look at what else is making news. Prime Minister Modi spoke to the Iranian President Saeed Ibrahim Raisi on the difficult situation in West Asia arising out of the Israel-Hamas conflict. Now, the Islamist group Hamas's armed wing Al-Qassam Brigade has said
The Islamist group Hamas's armed wing, the Al-Qassam Brigade, has said that it has launched 16 rockets from Lebanon towards Israel's city of Nahariya and southern Haifa. Israeli security forces have killed 4 Palestinian militants who said they were part of a cell in the occupied West Bank that was directed by the Hamas and behind numerous shooting attacks. Dozens of foreign passport holders and some medical evacuees have passed through the Rafah crossing from Gaza into Egypt after evacuations resumed following a 2-day suspension. At least 10,022 Palestinians have been killed, including 4,104 children in Israeli strikes on Gaza since the 7th of October. Israeli airstrikes on 2 refugee camps in Gaza in the last few days have killed several people, leading to an increase in the toll. US Secretary of State Antony Blinken has wrapped up a grueling Middle East diplomatic tour Monday in Turkey after only limited success in his furious efforts to forge a regional consensus on how best to ease civilian suffering in Gaza as Israel intensifies its war against the Hamas. According to the Palestinian Health Ministry, at least 8 Palestinians were killed in attacks and dozens were wounded at the medical complex containing the Al Nasser Children's Hospital. And coming up next, we get you the latest on the polls in Mizoram. And also, we'll go across to our correspondents in Chhattisgarh.
are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, आतंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. पतंगे रस्सी से खाली हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले वेट हो गए चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा, मुँह खोल रहे हैं। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारिक नाम दिया था विनोद वर्मा। The stage is set for the 2024 election as the first of the season kicks off. Voting begins for 40 assembly seats in Mizoram. The first phase of voting is underway in Chhattisgarh. It's the BJP versus Congress as the Mahadev betting app scam becomes the top focus. Republic Media Network's 8-part investigation into the Mahadev betting scam becomes #1 election issue. As gold smuggling angle emerges in the betting scam, ED sources suggest that Dubai link is now under the scanner as well. The ED takes note of Republic TV's sting, writes to us to get the Mahadev investigation sting tapes. And huge impact of the Republic investigation. ET sources tell us that summons are likely to be issued soon. Hey, good morning and thank you for staying tuned. And well, what started with sting tapes of 4 key players has now exploded into a full-blown 8-part investigation that has exposed the Mahadev betting scam. From the alleged role of the CMO to smuggling and D-gang link, the Mahadev scam is exploding. BJP is now hitting out at the Baghel government. Listen in to the responses that have come in so far. Republic conducted this investigation over a period of 9 days and scathing observations. Remember, the ED has leveled these allegations and the most important being that Chief Minister Bhupesh Baghel, who is facing allegations of taking 508 crore rupees in order to support the promoters of the Mahadev app. Not just this, we also put out those videos yesterday of the person who claims to be the owner of Mahadev. But most importantly, not just the police protection, but the political nexus that has been unraveled so far as a part of this investigation. Meanwhile, the BJP hitting out at the Congress, questioning them over these allegations. Listen in to the responses. कांग्रेस केवल अपने मुकदमे खत्म करेगी, ईडी हाथ में आएगी। ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है और कल भी केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कब
छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिखा, एक भी कागज नहीं दे पाए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी? कार्रवाई की, लेकिन केवल उगराही करने के लिए, पैसे वसूलने के लिए। ये वसूली की सरकार भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। जब हम पहले कहते थे भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, वही हुआ। 508 करोड़ रुपया भूपे किया और महादेव ऐप चलती रही। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सिस्टम है। बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3 अधिकारी इससे लिप्त हैं, उनको पैसा मिलता है। उनका बयान जो आया है सोनी का, जो महादेव का प्रमुख है, संचालक है, कि मैंने 509 करोड़ 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, 5.7 यानी 5 करोड़ 70 लाख रुपया जब्त हुआ है, और वो हैंडलर था जिसको किया गया, उसके बयान पे भी आया है कि बघेल नाम के व्यक्ति को हमने पैसा दिया है। तो इससे बड़ा और प्रमाण कोई हो सकता है दुनिया में कि जो पैसा देने वाला है वो बोल रहा है, जो महादेव ऐप का डायरेक्टर है अपना प्रमाण पत्र दिखा रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ, वो डायरेक्टर जब बोल रहा है तो और किसको ढूंढ के लाओगे आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। इससे ज़्यादा पुख्ता प्रमाण देश की जनता और प्रदेश की जनता और ईडी के पास। You've heard all the reactions come in also from the former Chief Minister of Chhattisgarh, Raman Singh, who has hit out at Chief Minister Bhupesh Baghel, saying that people know he's a scamster. In fact, many of those ministers who also said that people in Chhattisgarh who were aware of the Mahadev scam and the app was being used in full force, but the details that have come out now and all these serious allegations staring at Bhupesh Baghel, who has been dismissing these claims that have been levelled against him. But well, the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has a lot of questions to answer. Multiple players who have named him in connection with this scam. Was 508 crore rupees accepted by the Chief Minister? Was the cash sent on a monthly basis to CMO? Republic's investigation has put the focus on the political angle in this scam. Here's the 8. Republic investigation in Mahadev betting scam has set the agenda. The sting that mentioned alleged role of CMO in scam. सर, आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो, बहुत सारे चुनाव थे। But the betting scam rot runs deep, and another angle that has now been uncovered is the Dubai angle. As our sting cameras rolled, main accused Saurabh Chandrakar's key aide reveals how the entire betting empire was established in Dubai. तो मैम ये डायरेक्टली दुबई नहीं किया, ये डायरेक्ट ये नहीं किया, पहले पूरा चीज को समझा। मैम माइंडेड बहुत है, तो मैम इसके ये जब स्टार्ट किया ना मैम प्लेटफॉर्म को, तो डायरेक्ट दुबई से ये जो दुबई से उसको डायरेक्ट जो कार जोड़ रहे हैं ना, इसका डायरेक्ट दुबई से, ये पहले इंडिया से काम शुरू किया था। मैम ये सॉफ्टवेयर आप भी बनवा सकते हैं, ये चीज़ मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पे काम हो गया है। और इसका मतलब आज से मतलब 2024 लास्ट तक इसका कहना है कि मैं पाब्लो एस्कोबार से भी बहुत ऊंचा जाऊंगा, मतलब वर्ल्ड के ब्लैक मार्केट में मेरा टॉप क्लास में नाम रहेगा मेरा। मैं मतलब ना जब मैं दुबई में था ना, तो विला में आया था, तो ड्रिंक नहीं वो मैम वो कहीं नहीं जाता। अच्छा, वो सिर्फ चुनिंदा लोग से बस मिलता था। अच्छा, जो हाई क्लास के जो उनके पार्टनर लोग थे ना मैम, शेख वेख लोग से उनको बाद में सपोर्ट किए, ये बात सही है। और ये इसका जो क्रूज वगैरह मैम, वाकई में इसका क्रूज उस समय था,
2021 में 400 करोड़ का क्रूज लिया था मैम उसने। मेरे को हितेश पंजवानी ने भेजा था। मैम हम लोग पूरा पैनल ऑपरेट करते थे, मतलब हमको एक ब्रांच दे दिया जाता था। तो ब्रांच में मतलब एक लीडर होता था। वो पूरा मतलब हम लोग उस पूरी टीम को ऑपरेट करके चलते थे। कितना टाइम रहोगे सौरभ तुम दुबई में? मैम मैं था करीबन 4.5 महीना था। Saurabh Chandrakar's aide claims he too visited Dubai and witnessed the operations firsthand. अभी सेकंड टाइम में मैं अभी पकड़ा गया था, मैं अभी जेल में था। कब की बात? अभी मैं अभी 11 सितंबर को मैं छूटा मैं। अच्छा। हाँ, जुलाई अगस्त और समझ लीजिए सितंबर में जेल में था मैं क्या हुआ था मैम, मैं जब सेकंड टाइम जब गया था ना, तो मेरे को सेकंड टाइम जब मेरे को बुलाए थे, तो मैं वहाँ पहले मैं दुबई गया, दुबई से श्रीलंका गया। अच्छा। मैम क्या है ना, दुबई में काम दूसरी जगह इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वीजा का बहुत दिक्कत हो रहा है वहाँ पे दुबई में। हाँ, दुबई पहले क्या रहता था, आप वहाँ बैठे बैठे वीजा को बढ़वा लेते थे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मतलब उन लोग आस पास की किसी कंट्री में भेजते हैं वीजा बढ़वाने के लिए। मैम दुबई एक्चुअली मैं गया 2 बार। हाँ, 2 बार दुबई। पहली बार तुम 2021 में गए? हाँ, 2021 दूसरी बार अभी इसी साल में गया। आज से 3 साल में अभी तक कम से कम 60 से 70 हजार करोड़ का व्यापार हो चुका है दुबई में। इसकी बहुत सारी मतलब बिजनेस इसका बहुत सारा है दुबई में। इसका सबसे मेन काम है दुबई में गोल्ड का काम है, हवाला का काम है, और जो गोल्ड जो तस्करी होती है दुबई से कलकत्ता के रास्ते जो आती है, उसका इसका बहुत बड़ा काम है इसका वहाँ पे। इसका अफ्रीका से अच्छा कनेक्शन है गोल्ड का, लेकिन अफ्रीका से इसका बहुत तगड़ा कनेक्शन है। अच्छा। हाँ, अफ्रीका की कोई गवर्नमेंट से इसका बहुत अच्छा लिंकअप है इसका। So is there an underworld angle in the biggest betting scam? Mahadev App Insider is alleging Dawood link. पाकिस्तान से इनका जो लिंक बोल रहे हैं मैम है, दाऊद से इनका कनेक्शन है, नो डाउट है इनका, क्योंकि मैम बिना दाऊद के सपोर्ट के इन लोग काम इतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। दाऊद को जो हर महीने पैसा जाता है वो सब हवाला के जरिए पहुंच रहा है, सब टोटल हवाला है, कुछ नहीं है। मेन हवाला ही तो है मैम। ये जो पैसा जो इतना तो करोड़ रुपए जो जा रहा है सब हवाला के थ्रू पहुंच रहा है। Is dirty money from Dubai being pumped in election campaign? ED is gathering information to make a watertight case. Special investigative report by Republic TV. Public meeting is being organized by the BJP in Hyderabad, where Prime Minister Narendra Modi will address VC Atma Gaurav Sabha at LB Stadium. Union Home Minister Amit Shah will address election rallies in the assembly constituencies of Kuchaman, Makarana and Parbatsar in Rajasthan. ED has summoned former Mumbai Mayor and Uddhav Thackeray faction leader Kishori Pednekar on the 8th of November in connection with the COVID body bag scam case. Aam Aadmi Party MLAs asked Chief Minister Arvind Kejriwal not to resign if he is arrested by the Enforcement Directorate and continue to run the Delhi government from jail. Punjab Aam Aadmi Party MLA Jaswant Singh Gajjan Majra has been arrested by the Enforcement Directorate in connection with a money laundering case linked to an alleged bank fraud. Delhi NCR region continues to battle toxic air and is enveloped under a thick layer of smog, with visibility dropping as AQI remains under the severe category. As the ban that was imposed on BS3 petrol vehicles and BS4 diesel vehicles continues in GRAP4, Gurugram police restrict the entry of trucks into Delhi. And as voting for the first phase of the assembly polls in Chhattisgarh for 20 seats is underway, more than 25,400 polling personnel who have been deployed on the ground for the first phase of the polls. Here's a report from Rajnandangao polling booth. My colleague Piyush sending us this report. The polling booths over here in Rajnandangao constituency. Now this constituency is important because the former Chief Minister Raman Singh is contesting from this seat, and he's been given a tough fight by the Congress candidate. In fact, it was from this constituency where Chief Minister Bhupesh Baghel had come and shared
the Congress manifesto so you can understand the significance of this seat. I would just request my video journalist to show the visuals over here while I speak to one of the young voter. मैम, आपका नाम क्या है और किन मुद्दों पे आपने अपना वोटिंग किया है? मेरा नाम अनमोल आनंद वर्गीस है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। सिर्फ यहाँ का वोटिंग का डेट पता चला 7 नवंबर है, तो अपने पापा के पास आई हूँ। तो मैंने यहाँ का राजनांदगांव का विकास, यहाँ के एजुकेशन, गर्ल सेफ्टी, ये सब के मुद्दे पे रख के वोट किया। Here you can see that how the voters over here are enthusiastic. They have got lot of issues for which they have come to vote here. They have come over here for progress. They have come over here for better employment opportunities. They have come over here for better human resource development. And yes, corruption and transparency is also one of the key issues over here of the voters who have come over here to cast their votes. As I said, there are 20 seats which are going to go for polls today here in Chhattisgarh. Most of these seats are affected by Naxalism. But in the past, we have seen that how our security officials have successfully been able to make sure that elections have been held in these regions. Today also is a challenging day for them. While there have been incidents of violence which have been reported in these areas, the security officials are making sure that elections over here are being held and people come at least in substantial numbers to cast their votes and make sure that at the end it is the power of ballet that overcomes the power of bullet. Time now for a short commercial break. On the other side, getting you details as the stage is set for 2024. Election season kicks off. Voting begins for 40 assembly seats, I beg your pardon, in Mizoram. And the first phase of polling that is underway in Chhattisgarh, it is BJP versus Congress as the Mahadev betting scam becomes the top focus. यहाँ पे तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जोरदार धमाका हुआ, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुंचे थे और अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहाँ धमाका हुआ है। तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ पर आकर गिरता है। मुरसम, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्योंकि हमास को कहीं न कहीं बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है। हम लोग नीचे थे, वही कारण है कि बच पाए, अदरवाइज जो इसके शेल्स थे, जो इसके फ्रेगमेंट्स थे, वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था। ये पूरी बर्बाद कर सकते हैं। चला रहे हैं ये जो वेड ये सब चीज हो रही है, वो पूरा टोटल में मतलब गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा, जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। पतंगे रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह खोल गए।
पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था नहीं हो रहे हैं। Thank you for staying with Republic. And well, what started with sting tapes of 4 key players has now exploded into a full-blown 8-part investigation that has exposed the Mahadev betting scam, from the alleged role of the CMO to smuggling and the D-gang link. The Mahadev scam is exploding. Take a look at this report. पुलिस महकमे में कैसे बनाया, कैसे इसको पता चला कि नहीं प्रोटेक्शन चाहिए तो काम के लिए पुलिस को साथ रखना जरूरी है और नेता लोग को, है ना। आज भूपेश बोलता है मोदी को इतना बड़ा गेम चल रहा, बंद क्यों नहीं करवाता? मोदी भूपेश को बोलता कि तेरे साहब चल रहा है, किसको क्या बोले? ये सबका हाथ है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीस में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, सब दुबई से पैसा मांग रहे हैं? हाँ, मांगेंगे। क्या एक विधायक भी पैसा मांग रहे हैं सीधा? मुँह खोल रहे हैं। लेकिन मोड कैसे, पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI, चलो खोल दी ना, पड़ी मार दो, इसको इतना देता था, उसको इतना देता था, ऐसी होगा, कहीं जुगाड़ होगा। लेकिन अब तो लेकिन सुनिए, ये दोनों अब चले गए अंदर, लेकिन अभी भी चुनाव आ रहा है, डिमांड बढ़ी रही है, सब छूट जाएगा। जुआ एक तो लगता है इसमें, ये जो छुटूरिया पकड़ाए थे उसको 24 घंटे छूट जाते हैं। वही लैपटॉप मोबाइल जब्ती होती वही नहीं मिलता है, कैश जब्ती हो किसी पास 2 लाख, किसी पास 5 लाख, 24 घंटे जुआ एक है बस। और ये लोग के पास ज़्यादा पकड़ा है, बहुत कैश पकड़ा है, ट्रांजेक्शन दिखा दी ना पूरा मोबाइल में। किनके पास बहुत पकड़ा है? और मोबाइल में दिखा दिया, मोबाइल सबसे बड़ा बीमारी तो मोबाइल है। उसकी विशेष पार्षद प्रियंका साहू, इतना मोटा तो चेयर उसके गले में, जितना वो मोटा था मेरी मिसेज पायल पहनती है, 4 उंगली में अंगूठी, ब्रेसलेट, एक सारा भोला बता दिया, सौरभ को सबके चाचा यही है। सबका हाथ है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीस में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो CM साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। देखिए अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा, प्राइवेट जेट से आएगा, या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते? हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो कि एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए हैं, अभी नहीं, पहले किए हैं। 2022 में किया था 2022 में उन्होंने किया था, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है, प्राइवेट के थ्रू हुआ है। वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया, तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए, अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो,
तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूँ मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। पैसे के लिए और काय के लिए? इतना बड़ा भाई, एक छत्तीसगढ़ छोटा सा स्टेट, वहाँ तो कुछ अमाउंट भी देगा तो बहुत बड़ा होता है, और मैंने ऐसा छोटा मोटा अमाउंट तो दिया नहीं है। जाने का क्या अमाउंट कितना दिया है? 450 से 500 रुपए तक का दिया हुआ है उधर अमाउंट। मैं गया 2 बार। हाँ 2 बार दुबई। पहली बार तुम 2021 में गए? हाँ 2021 दूसरी बार अभी इसी साल में गया। आज 3 साल में अभी तक कम से कम 60 से 70 हजार करोड़ का व्यापार हो चुका है दुबई में। इसकी बहुत सारी मतलब बिजनेस इसका बहुत सारा है दुबई में। इसका सबसे मेन काम है दुबई में गोल्ड का काम है, हवाला का काम है, और जो गोल्ड जो तस्करी होती है दुबई से कलकत्ता के रास्ते जो आती है उसका इसका बहुत बड़ा काम है इसका वहाँ पे। इसका अफ्रीका से अच्छा कनेक्शन है गोल्ड का, लेकिन अफ्रीका से इसका बहुत तगड़ा कनेक्शन है। हाँ अफ्रीका की कोई गवर्नमेंट से इसका बहुत अच्छा लिंकअप है इसका। It's undoubtedly a big scam with deep political links. ED has taken note and sought sting tapes, and political ramifications of this sting are far and wide. It is the biggest talking point of this election season. Mahadev betting scam is the biggest political story that others in media have been forced to follow. Time now for a short break. On the other side, the stage is set for 2024 as election season kicks off. Voting has begun for 40 assembly seats in Mizoram. Phase 1 of voting is underway in Chhattisgarh. It is BJP versus Congress as Mahadev betting scam becomes the top focus. हवाला में जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए कभी पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है।
सकते हैं क्या हम लोग चला रहे हैं ये जो रेड ये सब चीज छोड़ो रहे हैं मतलब पूरा टोटल में मुझे गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जोरदार धमाका हुआ, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हम यहाँ पर रिपोर्ट करने The stage is set for the 2024 elections as the season kicks off. Voting begins for 40 assembly seats in Mizoram. Phase 1 of voting is underway in Chhattisgarh. It's the BJP versus the Congress as Mahadev betting scam becomes the top focus. The Republic Media Network's 8-part investigation into the Mahadev betting scam becomes #1 election issue. As the gold smuggling angle emerges in the Mahadev betting scam, ED sources suggest that the Dubai link is now under investigation. Enforcement Directorate takes note of Republic TV's sting, writes to Republic to get the Mahadev investigation sting tapes. Massive impact of the Republic Mahadev investigation. ED sources tell Republic summons are likely to be issued soon. Well, Chhattisgarh and Mizoram kicked off the month-long poll battle today while voting for 20 seats out of the 90-member Chhattisgarh Assembly is taking place for the first phase. The 40-member Mizoram Assembly is undergoing polling in a single phase. Let's go across live to our reporters on the ground. Joining us on the broadcast from Mizoram is Aniruddha. He's reporting from Aizwal. And we've also got Piyush live from Rajnandgaon. First, going across to Aniruddha. Aniruddha, how has the voting been so far? Now, Mizoram does have one of the highest polling percentages across the country. Last time round, I think it was about 80%. Is that looking like the scene this time as well? Yes, exactly, Nupur. This time also very high turnout is being expected, and officials at the election department of Mizoram has also informed us that the state will break its own record this time again with a very high turnout. In the first 2 hours itself, over 17% voters turnout has been recorded so far. Right now we are in Dintervang area, and as you can see, people are still there in the queue to cast their vote. They are waiting for their turn. Everything has been done in a very systematic manner by the Mizoram People's Forum, a civil society organization which is monitoring the elections also, and in fact it is the Mizoram People's Forum who have banned election rallies this time in Mizoram, giving a common platform to all the candidates to voice their issues, to convince the public as far as what are the issues that concerns the public. We have some voters out here. Sir, I'm coming to you. I would like to know from you, what are the issues that concerns the voters of Mizoram this year? The concern, I mean, what
in what are the issues that these elections, main issues of these elections? the main issue, I think during this time, I think the youth are really into the politics this time. They are very concerned. Last time, the youth were not at all concerned with this politics and all, but now they are a little bit concerned. They want changes. I think they are fed up of the old ways. I think they want a new policy and a new way of this politics. That's why the youth are very involved this time, I think. That is the main strong comment that has come in that the youths of Mizoram are very concerned this time as far as these elections are concerned, and earlier they were not so much involved in the elections, but this time they are taking active participation in the elections, and that is the reason why very high voter turnout is also expected. On the other hand, issues concerning the youths, mostly when we have been talking to various youths or various voters since morning, and they have informed us that there are many issues which concerns them, ranging from unemployment to the issues of corruption. Remember, there have been major allegations against the MNF government this time particularly, and it seems that the fight is not going to be very smooth for the incumbent MNF government. Though Chief Minister Mizoram Thanga, while speaking to the media, have expressed confidence that he is confident of merging as the single largest party, but the trends will only show on December 3rd what the mandate of the people is. Nupur. All right, so as you're pointing out, of course, it does appear from the people you've spoken to since the morning, unemployment is a major cause of concern. But apart from that, in your interactions with the voters, do you see perhaps, a runoff effect of what's happened in Manipur? Is that something that we are going to perhaps bear some, make some difference in the elections, so to say, in Mizoram? Absolutely, Nupur. It was being expected that the issue of Manipur, the issue of the political situation, the crisis in neighboring country of Myanmar will be factors in the elections this year in Mizoram. But on the ground, it seems that the issue of Manipur, or the issue concerning the refugee crisis in Myanmar, is not a issue that the voters are really concerned about, though it was these two were the major issues on which the MNF tried to bank on. The MNF, the incumbent government, tried to bank on heavily on these two particular issues. But when we have been interacting to various voters since the morning, it seems that the issues concerning Manipur and the neighboring country of Myanmar are not actually a matter of concern for them. What concerns them most is what is going on in Mizoram, ranging from unemployment to the various other factors that the youths have been facing, as well as corruption in the state. Nupur. All right, stay with us, Aniruddha. Let's also go across to Vaibhav, who's joining us from Rajnandgaon. Vaibhav, give us an overview of the polling percentage so far. Now, some of the districts that are going to the ballot in Chhattisgarh, of course, are Naxal infested, so security is extremely high.
बिल्कुल, हम इस वक्त राजनांद गांव में ही मौजूद हैं और यहाँ पर आप एक बार सबसे पहले हम पोलिंग बूथ की तस्वीर जो है वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मतदान जो है वो 8 बजे से शुरू हुआ था। शुरुआत में जो है वो लोग कम पहुंचे, लेकिन अब आप देखिएगा बूथ के बाहर लंबी लाइनें जो हैं वो अब इस वक्त वोटरों की लगी हुई हैं। तमाम लोग जो अपने मत का इस्तेमाल करके बाहर आ रहे हैं उनसे भी हम बात करें। मैम, आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया जी? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? मैं सबसे पहले तो इस चीज का बहुत शुरू से अपनी उंगली कैमरे पर जरूर दिखा दीजिएगा। जी जी जी, कांग्रेस सरकार की एक सबसे बड़ी झूठ ये है कि उसने गंगा जल का कसम खाकर शराबबंदी करने की वादा मतलब पहले से कर चुके थे, लेकिन घोषणा बस इतना बता दीजिए, शराब रेवाड़ी वार्ड में, हमारे रेवाड़ी वार्ड में उसने मेन रोड में भट्टी खोल के बहुत बड़ी गलती की है। इसका मैं बहुत मतलब शराबबंदी मुद्दा है इस चुनाव में? अभी भी जी जी जी, इस चुनाव में शराबबंदी मुद्दा है। और कौन कौन से मुद्दे हैं इस चुनाव में? शराबबंदी एक मुद्दा है। देखिए, युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी भत्ता का लालच दिखाकर, लोभी बनाकर युवाओं को अपाहिज करने का काम हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। मतलब बेरोजगारी भी इस बार मुद्दा है चुनाव में। हाँ सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कौन कौन से मुद्दे इस बार आप लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? यहाँ शराबबंदी ज़्यादा है सर। हमारे यहाँ जो रोड में शराब खोल दिए भट्टी, महिलाएं ज़्यादा त्रस्त रहती है, उससे आने जाने में परेशानी होती है उन लोग को। साहब, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा? भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है सर। भ्रष्टाचार का मुद्दा है इस बार? जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो आप देखिए केवल राजनांदगांव ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा है। महादेव ऐप को लेकर आप देखिए कि कांग्रेस के लोग उसमें घिरे हुए हैं। मैं एक बात बोलता हूं आपको कि आज हम युवाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के माध्यम से बीजेपी ने युवाओं को सशक्त करने का काम किया है। यानी कि आप लोगों का मूड जो है वो परिवर्तन का है। कुछ लोग और है हमारे, एक बार पंकज ये तस्वीर जरूर दिखाएगा, क्योंकि ये सभी महिलाएं जो है वो अपने मत का इस्तेमाल करके अब बूथ से बाहर निकली हुई हैं। मैम, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? महिला सुरक्षा, शराबबंदी, भ्रष्टाचार, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। मैं कुछ नहीं बोलना। मैम, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? मैम, अगर आप बोलना चाहें तो कुछ महिलाएं जो हैं वो बोलने से थोड़ा सा हिचकिचा जरूर रही हैं, लेकिन आप देखिएगा बूथ के बाहर लंबी लाइन है। सर, आपने अपने मत का इस्तेमाल किया? जी सर। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट? शांति वातावरण बनाने के लिए। शांति वातावरण मतलब अगर कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो प्रदेश में, इसको लेकर आपने वोट किया? ठीक सर। एक बार हमारे कैमरे की तरफ आएंगे और अपनी ये नीली स्याही वाली उंगली जरूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि आज के दिन इसका बहुत महत्व हो जाता है। ये वो स्याही है जिस स्याही के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग लाइन में आपको नजर आ रहे हैं ये सभी कितना विश्वास करते हैं अपने इस देश के लोकतंत्र पर। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? वोटिंग लाइन में खड़े हैं, क्या सोचकर घर से निकले हैं? भाई, मतदान अपने मत के हिसाब से करेंगे, किसी पार्टी को लेवल के देख कर नहीं, किसी पार्टी को नहीं। क्या सोचकर आप आज अपने मत का इस्तेमाल आप करेंगे? लोकतंत्र के तहत हम मतदान अपने मन से करेंगे, किसी पार्टी के दबाव से नहीं करेंगे। हम जाकर वहाँ पे अपने मन की सुविधा देखेंगे कि वास्तव में कौन पार्टी क्या है। पहले से कोई पार्टी नहीं देखेंगे कि ये पार्टी ये है वो है। ठीक है, ओके। मुद्दा क्या रहने वाला है छत्तीसगढ़ के अंदर? भ्रष्टाचार, शराबबंदी, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कौन कौन से मुद्दे बहुत अहम हैं जो आपको परेशान करते हैं? नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है। दादा, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आज आप वोट करने जा रहे हैं? नहीं भाई, क्या रहेंगे, शांतिपूर्ण में जा रहे हैं, वोट डालेंगे। शांतिपूर्ण माहौल प्रदेश का रहे। मैम, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे आज? मैम, आप बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी तो मेन है, वो मुझसे लगता ही नहीं कि कभी होगा क्योंकि सरकार की इनकम उसी में है। और पहला है, और सेकंड है जॉब के लिए। आजकल जो गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी निकलती है बहुत कम निकल पा रही है। मैम, शराबबंदी मुद्दा रही है इस बार चुनाव में? जी हाँ, शराबबंदी मुद्दा है। और मैम, शराबबंदी इस बार चुनाव में मुद्दा रही। शराबबंदी से आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हाँ। सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मोला समझ नहीं आएगा दुनिया भर। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है। अब तो लाइन में आप खड़े हो गए हैं, कुछ देर बाद आप अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑल राइट। दुनिया भर तो ये लंबी लाइन है। कुछ लोग जो है वो अपने मुद्दे छुपा रहे हैं और कुछ लोग खुलकर बता रहे हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार अपना वोट करने वाले हैं। बैक टू स्टूडियो। So Vaibhav, as you're pointing out, of course, people over there are voting on a number of issues. Thank you for the moment for joining us. I'm going to quickly play out a conversation we've had with Raman Singh, the BJP's Chief Ministerial Contender. सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज बहुत ही अहम चुनाव है।
नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में चुनाव है, लेकिन लोग आ रहे हैं। पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप वोटरों को क्या बोलेंगे जो नक्सल प्रभावी क्षेत्र में भी मतलब डट के आ रहे हैं और वोट करना चाह रहे हैं। मैं सभी मतदाता भाइयों को खासतौर से दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, नारायणपुर, बीजापुर, दूरस्थ अंचल के उमानपुर, मोहला, चौकी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में आपकी भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत हुआ है और आपके वोट से ही जो सरकार बनेगी उस सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी। और आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालिए, मतदान का अधिकार आपको है और उसका उपयोग पूरा करें। नक्सलिज्म का खात्मा कब होगा सर? क्योंकि नक्सलिज्म बहुत बड़ा मुद्दा है। हम नहीं चाहते आज 20 सीट्स में मतलब चुनाव हो रहा है, उसमें कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मतलब नक्सलिज्म है, हिंसा हो रही है, तो इसका खात्मा कब होगा ये ज़रूरी है जानना। अगले 5 सालों में स्थिति में बड़ा परिवर्तन होगा। सरगुजा में स्थिति बदली है, बस्तर भी हो जाएगा। सर नक्सलिज्म के अलावा अब आप मुझसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा मामला है। महादेव में तो आपने अपनी टिप्पणी दे दी है, लेकिन कांग्रेस तो बोलती है कि ये सब एक साजिश है धूमिल करने की उनको, और चुनाव के बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा। तो अब मुझे आप बताइए कि महादेव सट्टा घोटाला, जो लिकर घोटाला जो आप बोल रहे हैं, ये कितने बड़े मुद्दे हैं जो वोटर्स हैं उनके माइंड में? भ्रष्टाचार 15,000 करोड़ का घोटाला, और अकेले महादेव ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। शराब में 2,100 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़ का कोयले में घोटाला, 600 करोड़ का चावल का घोटाला, गौठान में 1,300 करोड़ का घोटाला। ये तो सभी क्षेत्रों में, और अब तो पीएससी में भी घोटाला करके पैसा कमाने की साजिश हो रही है। तो एक प्रकार से सरकार का महकमा सिर्फ और सिर्फ उगाही में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार में लगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे बस यही है सर, मुझे मालूम है कि सारे और भी वोटर और भी पत्रकार जो आपसे बात करना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर कि छत्तीसगढ़ की जनता को आज आप क्या वादा करेंगे कि आप डिलीवर कर पाएंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ को हम भी चाहते हैं कि एक विकसित राज्य बने, हम चाहते हैं कि इस राज्य से भ्रष्टाचार खत्म हो, इस राज्य से नक्सलिज्म खत्म हो। क्या वादा करना चाहेंगे आज आप कि छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य बने, यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने और नक्सलिज्म खत्म हो? एक लाइन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, उसको मैं रिपीट करता हूँ। छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, हम ही इसको संवारेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। अब इसके विकास के लिए 15 साल हम लोगों ने काम किया था। आगे इसको संवारने की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की। Well, I have cast my vote and I have visited half of my constituency also. And I believe that from the political atmospheres and of this voting day, I believe that we shall be able to form the government. And in my constituency, in the East one, we hope we shall be having an overwhelming victory. So if you look at the history of the Mizoram election, it has always been an alternate government of the Congress and the MLF. At this time, the ZPM has emerged as a dark horse. So what do you have to say on that? Well, this time we have finished only one term. So normally, at least they had the 2 terms, 10 years. But anyhow, this is not the most important. The most important is how you perform during your government. So during this, even in the COVID period, we have performed very well, and I believe that people appreciated it, and we shall be able to form the government. Will you be in a position to form government on your own, or will you be needing the support? Well, I certainly believe that we shall be able to form the government on our own, not of any coalition type. If situation arises, with whom you will allow it? Situation will not arise in which we will need other parties. MNF will be able to form the government. Sir, of late we have seen that BJP, which was your ally, which is still your ally, you have been attacking the Bharatiya Janata Party, and the Bharatiya Janata Party in their manifesto has said that there will be a SIT to grow the SEDP, which they call it a scam. Well, during the election campaign time, any party can say anything. So this time we have performed the SEDP very good, and we have given them
through the bank account transfer system. There is nothing to investigate. BJP is still your friend? BJP, our friend in the center, we are the NDA partner, but not here in the state. And here's a look at what else is making news. The public meeting is being organized by the BJP in Hyderabad, where Prime Minister Modi will address the Atmagaura Sabha at LB Stadium. Union Home Minister Amit Shah will address election rallies in assembly constituencies of Kuchaman, Makrana and Parbatsar in Rajasthan. The ED has summoned former Mumbai Mayor and Uddhav Thackeray faction leader Kishori Pednekar on the 8th of November in connection with the COVID body bag scam. Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal has said that he is unlikely to resign if he is arrested by the ED and continue to run the Delhi government from jail. Punjab AAP MLA Jaswant Singh Gajjan Majra has been arrested by the Enforcement Directorate in connection with a money laundering case linked to an alleged bank fraud. The Delhi NCR region continues to battle toxic air and is enveloped under a thick layer of smog, with visibility dropping as the air quality index remains under the severe category. As the ban that was imposed on the BS3 petrol vehicles and BS4 diesel vehicles continues in Gurugram, police have restricted the entry of trucks into Delhi now. You are with Republic TV. On the other side, Enforcement Directorate takes note of Republic TV's sting. And massive impact of the investigation. ED sources tell us that summons are likely to be issued soon.
प्राइवेट जेट से आएगा, प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू कभी पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। क्या कभी आपने भी सोचा था कि आदिवासी परिवार से निकली, गांव जंगलों में पैदा हुई, गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी? आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर किसी को गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने उन्हें रोकने की, उनके अपमान की इतनी कोशिश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदिवासी समाज की बहनों को ये सम्मान भाजपा ने ही दिया है। साथियों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना, बर्बाद करना, यही उनकी सोच थी। लेकिन भाजपा ने जब भी आदिवासी हितों की बात आई, सरकार का खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी। दोस्तों, भाजपा ने आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट, ये याद रखना भाइयों, याद रखोगे? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताइए, याद रखोगे? पक्का रखोगे? आपने मुझे जो काम करने का मौका दिया ना, इस सेवा काल है मेरे लिए, तो सत्ता काल नहीं है। मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है। आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट 5 गुना बढ़ा दिया। 5। आप खुश हैं? आप खुश हैं? आपको संतोष हुआ? ये मोदी का काम है। आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे यहां गांव-गांव में अंग्रेजी वाली स्कूल तो है नहीं। गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकता। और ये कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अगर अपने गांव की भाषा में पढ़ा है, अपने आदिवासी की भाषा में पढ़ा है, अपने राज्य की भाषा में पढ़ा है,
तो वो बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, इंजीनियर नहीं बन सकता था, क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है। देश आजाद हो गया, लेकिन इनके दिमाग में से अंग्रेजी का भूत नहीं गया। मुझे बताइए भाई, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, सर पे दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पांव में दर्द हो रहा है, तो क्या डॉक्टर आपको अंग्रेजी में पूछता है क्या? आपकी भाषा में पूछता है कि नहीं पूछता है? आप अपनी भाषा में बताते हैं तो वो समझता है कि नहीं समझता है? तो फिर डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? इंजीनियर बनने के लिए अंग्रेजी जरूरी है क्या? ये मोदी है जिसको आपकी तकलीफ का पता है, और इसलिए मैंने तय किया अब गरीब माँ का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जिस भाषा में वो पढ़ता है उसी भाषा में डॉक्टर बनेगा, उसी भाषा में इंजीनियर बनेगा। पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार आदिवासी परिवारों को लाखों नए पट्टे दे चुकी है। 9 साल पहले तक जहां 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, सामुदायिक पट्टे, वहीं हमने 80,000 से अधिक नए सामुदायिक पट्टे दिए हैं। और इसीलिए हर छत्तीसगढ़ी एक ही बात कहता है, भाजपा आवत है, भाजपा, भाजपा। इसलिए सरगुजा ने भी हुंकार भरी है, अब की बार, अब की बार, अब की बार मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, क्या ये बम बंदूक के साए में जीना है क्या? ये बम बंदूक के साए में जीना है क्या? कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग? और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। हटाओगे? बिल्कुल साफ कर दोगे? हर कोने में से हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? पक्का हटाओगे? जरा पीछे वाले हाथ ऊपर करके बताइए, हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? यहां सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार में सरगुजा क्षेत्र में मानव तस्करी और नशे का कारोबार
बेतहाशा बढ़ गया है। यहां बहनों बेटियों को अपराधी निशाना बना रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवारों की, गरीब परिवारों की अनेक बच्चियां गायब हुई हैं। बेटियां कहां गई, इसका कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। यहां कांग्रेस द्वारा वोट के लिए अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है। इसलिए पूरे सरगुजा से एक ही आवाज आ रही है, बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा है, माता बहनें एक ही बात बोल रहे हैं। गांव हो या शहर हो, हर कोई एक ही बात कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने दशकों तक दिल्ली में सरकार चलाई है। देश के कोने कोने में उन्हीं का राज था। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस के सिवाय किसी का झंडा ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को सिर्फ झूठे नारे दिए। अगर आज मेरे 10 साल के सेवा काल में इतना काम हो सकता है, तो उनको तो 5-5, 6-6 दशक मिले थे। वो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन उनको अपने जेब भरना, घर भरने के सिवा कोई काम ही नहीं था। 5 दशक से कांग्रेस बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे। 50 साल से क्या बोल रहे हैं? गरीबी हटाएंगे। तो फिर कब तक ये गाना गाते रहोगे? कहीं से तो हटाओ। गरीबी हटाएंगे कहते कहते कांग्रेस के नेता खुद हर साल और अमीर होते जा रहे हैं। पहले साइकिल पे चलते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं। जब ये भाजपा सरकार है जो गरीबी हटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। आपका ये मोदी गरीबी से ही निकल करके आया है। एक गरीब के बेटे को आपने यहां तक पहुंचाया है। मैं गरीब का दर्द भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को जिया है। मैंने गरीबी को भाषण में नहीं सुना है, अखबार में नहीं पढ़ा है, किताबों में नहीं पढ़ा है। मैं गरीबी झेल करके आया हूं। जब कोरोना का संकट आया तो सारी दुनिया मौत से मुकाबला कर रही थी। दुनिया का कोई देश नहीं था जो लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझते न हो। सारा दुनिया का जीवन ठप हो गया था। हमारा देश भी बचा नहीं था। और तब जाकर के मैंने तय किया था, मुसीबत बहुत बड़ी है। दिन रात दौड़ूंगा, जागूंगा, मेरे देश को बचाऊंगा, मेरे देश के लोगों को बचाऊंगा। याद कीजिए वो संकट के दिन, याद कीजिए अपने रिश्तेदार भी घर तक आने के लिए हिम्मत नहीं करते थे। उस समय ये मोदी दिन रात आपके लिए दौड़ता था, काम करता था। मैं सोचता था बाहर कारोबार नहीं है, लोग घर के बाहर जा नहीं पा रहे हैं, मेरे आदिवासी बच्चों का क्या होगा।
मेरे गरीब बच्चों का क्या होगा? क्या मेरे देश में मेरा गरीब का बच्चा भूखा सो जाएगा? मेरे आदिवासी का बेटा बेटी भूखे सो जाएंगे? मैंने उसी दिन तय कर लिया था, सरकार के भंडार खोल दूंगा, लेकिन गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। अनाज के भंडार खोल दिए थे, इतना लंबा समय हो गया, आज भी गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। भाइयों बहनों, मुझे मेरे देशवासियों ने इतने आशीर्वाद दिए, और जब गरीब के पेट में अन्न जाता है ना, गरीब का बच्चा जब भूखा नहीं सोता है ना, तो उसके आशीर्वाद हमारी जमीन पर भी नजर आते हैं, हमारी फसल में भी नजर आते हैं, और हमारा किसान भी पैदावार ज्यादा करता है। और इसलिए मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है। मैंने निश्चय कर लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। ये योजना यूं तो दिसंबर में पूरी होने वाली थी। 80 करोड़ परिवारों को जो आज अनाज मिलता है, वो दिसंबर में पूरा हो जाने वाला था। लेकिन ये आपका बेटा आपके लिए ही जीता है, और इसलिए हमने तय किया है, आने वाले 5 वर्ष के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन मिलेगा। आपके मोबाइल की लाइट चालू करके गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए। सब लोग अपना मोबाइल निकालिए। ये गरीबों के कल्याण का निर्णय है। ये गरीबों के बच्चों को रात को खाने पिया न सो जाए, इसके लिए निर्णय है। आप अपना लाइट चालू करके इसका समर्थन कीजिए। ये गरीबों की भलाई के लिए हुआ काम है। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार और ये गरीबों के लिए आपका प्यार, ये आपका गरीबों के लिए प्यार है, मेरे आदिवासी बच्चों के लिए प्यार है। आपका ये समर्थन, यही मेरी ताकत है। भाइयों बहनों, बोलो मेरे साथ भारत माता की, मेरे साथ बोलो भारत माता की। हमारे देश में अब किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं रहेगा। कोई मां, बहन, बेटी भूखी नहीं सोएगी। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा ने कहा था हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। भाजपा ने कहा था हर घर में शौचालय बनाएंगे। भाजपा ने कहा था हर गरीब के घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देंगे। भाजपा ने कहा था महिला आरक्षण का कानून बनाकर दिखाएंगे। भाजपा ने कहा था 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाएंगे। हमने ये सारी गारंटी पूरी कर दी भाई, सारी गारंटी पूरी किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? यही तो मोदी की गारंटी होती है। और भाजपा ने कहा था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। और ये मोदी है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनता है और 4 करोड़ गरीबों का घर भी बनता है। प्रभु श्री राम के ननिहाल, ये तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है, और आपके लिए तो ये कई गुना अधिक खुशी का पल है। और मुझे पक्का विश्वास है इस बार
प्रभु राम जी का ननिहाल भी मोदी को भरपूर आशीर्वाद देगा। साथियों, मोदी ने गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को उनका पक्का घर देने की गारंटी दी है। देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को इस गारंटी का फायदा मिल चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गरीबों को पक्के घर नहीं मिलने दे रही है। मैं जोर लगाता रहा, समझाता रहा, लेकिन वो नहीं किया। अब मैं आपको कहता हूं कि अब कांग्रेस की विदाई पक्की है, आपका घर भी पक्का है। आपके पास अभी तक पक्का आवास नहीं है, आप लिख लीजिए मोदी की गारंटी। यहां भाजपा सरकार बनते ही फिर से मेरा काम शुरू हो जाएगा, आपको पक्का घर दे करके रहने वाला। और यही तो मोदी की गारंटी है। विशेष रूप से मैं अपनी बहनों बेटियों को बताना चाहता हूं, ये घर बनता है लाखों रुपयों का, लेकिन अब पहले हमें मालूम हमारे समाज में कैसी व्यवस्था थी। घर है तो पिता के नाम पे या पति के नाम पे, दुकान है तो पति के नाम पे या बेटे के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पे या बेटे के नाम पर, गाड़ी लाए तो पति के नाम पर, बेटी के नाम पर कुछ नहीं, महिला के नाम पर कुछ है ही नहीं। सब कुछ या तो पति के नाम पर या तो बेटे के नाम पर। ये मोदी ने तय किया, अब जो घर देगा ना सरकार, माताओं बहनों के नाम दिया जाएगा। मालिक मेरी माताएं बहनें बनेगी। अब आप महिलाओं के नाम पर भी कोई संपत्ति होगी, अब आप महिलाएं भी लखपति होगी, अपने घर की मालकिन होगी। और जब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हो तभी लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। तभी छत्तीसगढ़ का भरोसा होता है, भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही सवारेगी। साथियों, एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले सजा आप दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा करके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है भाइयों। कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा।
ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। इनको साफ करना पड़ेगा भाइयों, साफ करना पड़ेगा। करोगे? हर पोलिंग बूथ में से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि यहां के मुख्यमंत्री उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। यह आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। हो सकता है आज जब मैंने कहा तो हो सकता है कांग्रेस के नेता कुछ उनके बचाव में दो चार आधी अधूरी बात बोल करके खाना पूर्ति कर लें, लेकिन कांग्रेस का एक नेता इनकी पापों के पक्ष में एक शब्द बोल नहीं रहा है। सब चुप हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने अपने और अपने बच्चों की भलाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मेरे विश्वास पे भरोसा है? आपको भरोसा है? आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना ही चमरबंदी क्यों ना हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। आपके बच्चों के साथ खेला गया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेताओं को कभी आपके बेटे बेटियों की, आने वाली पीढ़ियों की परवाह नहीं रही है। कांग्रेस के नेताओं ने आपके बच्चों को नौकरी देने का भी वादा किया था, लेकिन पीएससी की भर्तियों में कांग्रेस के नेताओं ने अपने बच्चों को भर्ती कर लिया। आपके बच्चे बेरोजगार रहे, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो यहां सरकारी कर्मचारियों की भी परेशानी पता चल रही। यहां कांग्रेस ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूं। पटाखा जो लग रहा हूं। दिवाली है, तैयार होकर आइए। Sarah, this is your space. Play it your way. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि।
विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। Take the Futura dosa tawa. Futura strong handles don't loosen. Its thickness is just right. The dosa does not stick. Futura dosa tawa. Hey, this delivery came for you. I paid for it. Thanks. Oh, मेरे पास तो दूसरा ऐप है। You can pay from any app to phone pay. 370, right? 280. 280. Oh, caramel custard. Sorry yaar. इस दिवाली सब सजेंगे, खूब जचेंगे। जब दिवाली फैशन मिलेगा सिर्फ ₹149 ऑनवर्ड से। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, ₹100 off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। इसलिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, सपने आपके, लैमिनेट्स हमारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। के नए अवसर पैदा होंगे। 3 दिसंबर को जैसे ही कांग्रेस सरकार जाएगी, वैसे ही यहां विकास की गति और तेज की जाएगी। यहां नए प्रोजेक्ट आएंगे, यहां का औद्योगिक विकास तेज किया जाएगा। भाजपा में सरगुजा संभाग में आधुनिक अस्पतालों के निर्माण पर भी बल दिया जाएगा। तब आपको बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए दूर बनारस या रायपुर तक नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, भाजपा सबका साथ सबका विकास पर भरोसा करती है, इसलिए छत्तीसगढ़ भाजपा पर भरोसा कर रहा है। सरगुजा की हर सीट पर, हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए। खिलेगा? खिलेगा? गांव-गांव जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना बस मोदी जी आ गए, कार्यक्रम शानदार हो गया, चलो सो जाओ, ऐसा नहीं करेंगे ना। पक्का काम करेंगे, घर घर जाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जिताएंगे। जरा हाथ ऊपर करके वादा करो, करेंगे? पक्का करोगे? अच्छा, ये तो आप भाजपा का काम करोगे, मेरा काम करोगे? Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. अरे बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत, यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। बस तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies over 200 years. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना। कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है घुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम लैमिनेट्स, कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। जब एक दिया जलता है, पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए, जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे, तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज
तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। ये किचन नया तो कुक भी नया। 1 मिनट। हाँ, या नमक कम है तो डाल दो। यार ये नमक नकली है क्या? नमक नहीं, कुक नकली है। अब किचन इतना इनवाइटिंग होगा तो कुछ नया बनाना एक्साइटिंग होगा। कुक अप द न्यू कुचीना, द किचन एक्सपर्ट्स। New Hawkins Tri-Ply Pressure Cooker. Spices don't stick. Food doesn't burn. New Hawkins Stainless Steel. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV.